Good morning class. Today we are discussing about the hardness testing machine. First we are discussing about the hardness. Hardness can be defined as a resistance to penetration, cutting or resistance to plastic deformation. Measure of a material ability to resist surface indentation or scratch mark. We use different testing machine methods and scale to measuring the hardness of any material. Basically hardness को अगर हम define करते हैं तो it is a resistance power to scratch mark, resistance power to cutting force, resistance power to do not deform any kind of plastic deformation. तो उसको हम resistance के hardness से define करते हैं कि कोई भी material कट नहीं सकता, उसके ऊपर स्क्रैच नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का इंप्रेशन आप जनरेट नहीं कर सकते हो, तो वो उसकी हार्डनेस कहलाती है। इसके लिए हम बहुत सारे टेस्टिंग मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। उसको मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं, जो कि किसी मटेरियल को हार्डनेस को मेज़र कर देती है। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग मशीन विच कैन बी यूज बाय द in industry. It was a Brennan hardness testing machine, because hardness testing machine, Rockwell hardness testing machine. The basic difference of the testing machine was the indenter used for the testing of a hardness. Indenter is basically the tool which is used to generate an impression on a material which we can want to calculate it. So the impression generated by the impression and the calculation done by the and according to the impression generated on the workpiece, so we can calculate the hardness of a material with the help of this 3 type of machine. And we have a different kind of formula used for calculating the hardness of a machine. First, we are discussing about the Rockwell hardness testing machine. The Rockwell hardness testing machine is a destructive type of testing machine. It consists of indenting in the test material, which a diamond cone and hard steel ball indenter. The material is forced into the test material under the applied load and make a dent inside the specimen. The movement of the indenter is measured by the dial gauge, and then we calculate the hardness of a material with the reading of dial gauge and applied load. बेसिकली जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, जब तक कि वो टूट नहीं जाता जब तक हम टेस्टिंग करते रहते हैं। इसमें जो इंडेंटर यूज़ किया जाता है वो डायमंड शेप का होता है या हार्ड स्टील बॉल होती है, जिसका यूज़ हम इंडेंटर के फॉर्म में करते हैं। इंडेंटर के थ्रू हम फोर्स अप्लाई करते हैं मटेरियल के ऊपर या वर्कपीस के ऊपर, जो कि जिस स्पेसिमेन की हमें हार्डनेस टेस्ट करनी होती है। और जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इंडेंटर का जो शेप होता है वो वर्कपीस के ऊपर या स्पेसिमेन के ऊपर अप्लाई होता है, जिसको हम डायल गेज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं या चेक करते हैं और हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायल गेज एंड जो अप्लाइड लोड लगाया जाता है उसके थ्रू। अगर हम यहाँ पर रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का बैकग्राउंड चेक करते हैं तो दिस मशीन इज इंट्रोड्यूस इन 1999 बाय द C.H. Wilson. Different weight composed of different material indenter will impress various uses. There are 2 kind of indenter, one is with a steel head and other with a diamond head. बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारे मटेरियल की हम हार्डनेस टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें हम 2 तरीके के स्टील बॉल का और डायमंड शेप का हेड का यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर है, जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है किसी भी मटेरियल की हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए। अगर हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम माइनर जो लोड अप्लाई मिनिमम जो लोड अप्लाई किया जाता है वो है 10 kg का लोड अप्लाई किया जाता है। मेजर लोड अप टू 60 kg, 100 kg और 150 तक kg का यूज़ किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंडेंटर वी कैन यूज, जो भी 2 तरीके के टाइप ऑफ इंडेंटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे माइनर लोड 10 kg से 150 मेजर लोड तक अप्लाई करके किसी भी मटेरियल की हार्डनेस को टेस्ट कर सकते हैं। जो स्टेप यहाँ पे यूज़ की जाती हैं फॉर टेस्टिंग प्रोसेस, इट वाज द फर्स्ट वी अप्लाई द माइनर लोड ऑन अ मटेरियल 10 kg। जब सबसे पहले माइनर लोड अप्लाई किया जाता है 10 kg का, उसके बाद डायल को सेट किया जाता है माइनर लोड मेजर लोड तक। उसके बाद आप वहाँ पर धीरे धीरे लोड को अप्लाई करते जाते हो, और लोड किसी भी लोड को अप्लाई करने के बाद वहाँ पर 4 से 5 सेकंड तक का स्टे किया जाता है फॉर चेंजिंग और डिफॉर्मेशन को चेक करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप सडन लोड अप्लाई करते ही चले जाते हैं, कंटिन्यूशन में लोड अप्लाई नहीं किया जाता, बीच बीच में उनको 4 to 5 सेकंड का रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। एंड रिलीजिंग द लोड टू द मेजर लोड ओनली। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में हार्डनेस नंबर को हम मशीन से कैलकुलेट कर सकते
सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन होती है। 100 नंबर में मोस्ट हार्ड मटेरियल और 0 में लीस्ट हार्ड मटेरियल होता है। हार्डनेस नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको हार्ड मटेरियल और लीस्ट हार्ड मटेरियल की कैटेगरी में यूज़ करते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट वे टच द surface of the workpiece and with the help of indentar. When we applying the force, the indentar goes to the workpiece and the impression is generated inside the workpiece. According to the depth, we can calculate the hardness of a material. The type of indenter is used. We are concerned two type of indenter are used. Diamond cone indenter are used for testing hard materials such as hardened steel and cemented carbide. Hardened steel ball indenter are used for testing soft materials such as fully annealed steel, soft grades of cast iron. बेसिकली दो तरीके के इंडेंटर हम यहाँ पे यूज़ करें, डायमंड कोन और स्टील बॉल का। तो डायमंड कोन यूज फॉर द हार्ड मटेरियल और स्टील बॉल आर यूज फॉर द सॉफ्ट मटेरियल। एडवांटेज होता है, द मोस्ट एडवांटेज ऑफ द आयरन क्रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन फॉर द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग हार्डनेस इज सिंपल टू परफॉर्म होता है। हाईली स्किल्ड ऑपरेटर आर नॉट रिक्वायर्ड होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ लोड के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेंटर का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। द इंटायर ऑपरेशन कैन बी कम्प्लीटेड विद इन 10 सेकेंड्स और रिजल्ट और डिस्प्ले का स्क्रीन पर हो जाता है डिजिटली, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Precautions during the manual operation, the workpiece should be raised very slowly with the screw as it approaches the indenter. जब मैनुअली इसको वर्कपीस को इंडेंटर को कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो धीरे धीरे लाया जाता है। The surface being tested must be perpendicular to the direction of the force and indentar within a 2 to 5 डिग्री। जिस सर्फेस को आपको टच करना होता है उसका जो डायरेक्शन ऑफ एंगल होता है आपका 2 से 5 डिग्री होता है। Careless operation is applied load not be result accurate reading but can damage the indenter. बेसिकली अगर आप इसको केयरफुली धीरे धीरे अप्लाई नहीं किया, सीक्वेंस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये इंडेंटर को डैमेज कर देता है और एक्यूरेट रीडिंग भी आपकी नहीं आती है। थैंक यू। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन एंड इट्स वर्किंग, इट्स एडवांटेज, प्रिकॉशंस। सो थैंक यू।